ਨਮਸਕਾਰ ਸਾਥੀਓ। ਰੀਟ ਪੀਐਸਟੈਟ ਅਤੇ ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ 올ਡ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੇਪਰ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ 14 ਭਾਗ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਏ ਗਏ ਪੇਪਰ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪੇਪਰ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਰਹੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਬੈਠਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਓ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਰਤਕ ਟੋਟਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਰਤਕ ਪੈਰਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰਤਕ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭਾਵ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਸਮਝ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲਾ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਲਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਪੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਰਥ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਆਓ ਸਾਥੀਓ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਪੈਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜੀਵਾਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰithvi ਉੱਪਰ ਪੁੰਗਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਕੋਲ ਨਾ ਦਿਸ਼ਾ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਨੁਭਵ। ਉਧਰ ਮਨੁੱਖ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਦਇਆ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰੋਤ ਘਟੇ, ਜਲ ਅਤੇ ਵਾਯੂ ਨਿਰਮਲ ਨਾ ਰਹੇ, ਵਣ ਸੁੰਗੜੇ ਅਤੇ ਵਣਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਜੀਵਨ ਸੁੰਗੜਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਪਜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵਾਰਤਕ ਪੈਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੈਰਾ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 61 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੜਨਾਮ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੜਨਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਕਲਪ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਜਵਾਚਕ, ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ, ਪੁਰਖਵਾਚਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਥੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਬੰਧ ਸੂਚਕ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ: ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉੱਤਮ, ਮੱਧਮ ਤੇ ਅਨਿਆ ਪੁਰਖ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਨਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਨਿਜਤਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਰਾਈਟ ਵਿਕਲਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 61 ਦਾ A ਨੰਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 62 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਥਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਸਥਨ ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਾਕ ਨੂੰ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ। ਵਿਆਕਰਣ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਥੀਓ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
पैरे दे अंदरों जरूर ने ये, पर व्याकरण पूछी गई है। यानी ये जिहड़ा आपां नूं वाक दिता गया तो इनू भूतकाल च बदलना है। ए नंबर देख लेने हैं आप, कोई स्थान नहीं है। बी नंबर आ जाता है कोई स्थान नहीं सी। सी नंबर है कोई स्थान नहीं हुंदा। तो डी नंबर है कुछ कहा नहीं जा सकता। तो साथियों जिहड़ा 62 नंबर आ जाता है तो उसका अपने कोले राइट ऑप्शन है जिहड़ा वो बी नंबर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपां इस दे अंदर दसना है भूतकाल, तो भूतकाल दे लई आपां वाक दे अंत च सी या इस प्रकार के आपां शब्दां दी वरतों करते हैं। जिवें कि कोई स्थान नहीं होवेगा, होवेगा शब्द है यह हैगा भविख काल का, तो जदों कि इनू बदलना पा भूतकाल च कोई स्थान नहीं सी, यानी जिहड़ा बीत गया है, तो राइट विकल्प अपना बी हो जाएगा, ये भूतकाल का हो जाएगा। फिर इस तो बाद अपने को जिहड़ा अगला प्रश्न आ जाता है वो आ जाता है 63 नंबर प्रश्न। दया लई किहड़ा शब्द ढुकवां है? यानी दया शब्द इस पैरे के अंदर भी आया है, तो आपां इन्हां 4 विकल्पों के अंदरों दसना है कि आपां नूं दया दे लई वधेरे ढुकवां शब्द किहड़ा प्रतीत हो रहा है। आशीर्वाद, बी नंबर विकल्प आ गया अपने को स्नेह, सी नंबर है प्यार, तो डी नंबर है तरस। तो साथियों दया शब्द के लिए ढुकवां शब्द है जिहड़ा वो ना तो आशीर्वाद है, इहदा अर्थ ही पूछा गया, समान अर्थ वाला पूछा गया। प्यार भी नहीं आपां इसनूं कह सकते, दया नूं आपां स्नेह भी नहीं कह सकते, दया नूं आपां तरस कह सकते हैं। दया करनी यानी तरस करना, यानी ढुकवां शब्द किहड़ा हो गया डी नंबर जिहड़ा विकल्प है वो अपना राइट हो जाएगा। यानी 63वें का की हो जाएगा, दया का ढुकवां शब्द तरस हो जाएगा। फिर इस तो बाद अपने को जिहड़ा नैक्सट क्वेश्चन आ जाता है वो 64 नंबर है। ये अंदर आपां नूं पूछा गया है कि जिहड़ा ये अपने को प्रश्न आ गया है, ये अंदर आपां नूं पूछा गया है कि कुदरत कोल ना दिशा अपनाउण योग अपनी सूझ है अते ना होरनां दा दुख महसूस करन योग अनुभव। एक बार फिर यह सतर देख लैनी है जो पैरे के अंदर आई है कि कुदरत कोल ना दिशा अपनाउण लई अपनी सूझ है अते ना होरनां दा दुख महसूस करन योग अनुभव। इस वाक विच योजक किहड़ा है? देखो ये अंदर भी फिर व्याकरण पूछ लई है, योजक पूछ लिया गया है, व्याकरण इकाई तो संबंधित जरूर ये पैरे के अंदरों लिया गया है, तो आपां इसका योजक दसना है। तो योजक दसना पहले विकल्प देख लैनी है, दिशा, सूझ, सी नंबर अते डी नंबर आ जाता है अनुभव। तो साथियों योजक शब्द का अर्थ जेकर आप गल करिए तो योजक शब्द का अपने आप च अर्थ होंदा जोड़ना। तो इन्हां दे अंदरों आपां नूं ना तो दिशा शब्द दोने वाकां नूं जोड़ रहा है, ना सूझ शब्द दोने वाकां नूं जोड़ रहा है, तो ना ही अनुभव शब्द है जिहड़ा दोने वाकां नूं जोड़ रहा है। इत्थे 2 वाक आ गए अपने कोल, कुदरत कोल ना दिशा अपनाउण योग अपनी सूझ है, ते अते शब्द जेकर आपां छड्ड दईए ना होरनां दा दुख महसूस करन योग अनुभव, इन्हां दोनों नूं जोड़न दा जिहड़ा काम कर रहा है वो अते शब्द कर रहा है। तो अपना अते शब्द है जिहड़ा वो योजक हो जाएगा, क्योंकि योजक का काम ही हुंदा है 2 वाकां नूं 2 शब्दां नूं जोड़ना। तो इसलिए अपना राइट विकल्प है जिहड़ा किहड़ा हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। यानी इहदा की हो गया आंसर अते शब्द सी विकल्प हो गया राइट। फिर इस तो बाद पैरे तो जुड़िया होया यह लास्ट क्वेश्चन अपने को 65 नंबर। मनुख शब्द का भाववाचक नाम की है? मनुख शब्द का भाववाचक नाम की है? नाउन पूछा गया है, नाम पूछा गया है, तो पूछा गया है भाववाचक, जिहड़ा 5वां नाम आप मानते हैं। तो भाववाचक इन्हां दे अंदरों आप देखने ही ने, मनुख का मनुखी, बी नंबर मनुखता, सी नंबर अमनुखी, तो डी नंबर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो साथियों भाववाचक वो होंदे ने जिन्हां दा कोई दृश्य ते आकृति नहीं हुंदी पर महसूस किए जा सकते हैं। तो मनुख शब्द के लिए इदां दा जेकर आप शब्द वरत सकते हैं तो वो आ जाता है मनुखता। मनुखता यानी दिखाई नहीं देती पर यह सब दे लिए महसूस करने योग शब्द है। तो मनुख शब्द का भाववाचक ही हो जाएगा मनुखता हो जाएगा। राइट विकल्प अपना बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
फिर इस तो बाद अपने को जोड़ा नैक्सट क्वेश्चन आ जाता साथी, वो 71 नंबर प्रश्न आप देखना है, क्योंकि अपने को जोड़े ये प्रश्न ने 30 प्रश्न होंगे ने लैंगुएज के, उन्होंने आप दो हिस्सों च वंड के पढ़ते हाँ। एक दे अंदर तो अपने को 15 प्रश्न, तो दूसरे भाग के अंदर भी अपने को 15 प्रश्न आ जाते हैं। तो 15-15 के यह दो भाग बना के आप पढ़ते हाँ। तो पहले जोड़े 15 होंगे ने उन्होंने अंदर एक पैरा लै लिया जाता है, तो दूसरे 15 होंगे ने उन्होंने अंदर दूसरा पैरा लै लिया जाता है। लैंगुएज फस्ट चाहे वो लेवल 1 के लिए है चाहे लेवल 2 के लिए है, दोनों के अंदर वार्तक पैरे पूछे जाते हैं। पर लेवल 2 है जोड़ा ਉਹਦੇ अंदर चाहे लेवल 1 तो चाहे लेवल 2 हो, दोनों के अंदर लैंगुएज सैकिंड के अंदर एक वार्तक टूटा होंदा है तो दूसरा कावी टूटा होंदा है। तो कावी टोटे की प्रैक्टिस आपनों इस चैनल के उपर एक्सट्रा तो भी करवाई जा रही है। बहुत काफ़ी सारे जोड़े पैरे ने वो अवेलेबल करवाए गए हैं। तो देखते हैं हुण आप 71 नंबर प्रश्न। 71 नंबर प्रश्न आ गया, मेहरबानी करके स्कूल जाओ, ये किस तरह का वाक है। हुण आप वाक का प्रकार दसना है कि ये किस तरह का वाक है। सरल वाक, बी नंबर प्रश्नवाचक वाक, सी नंबर आ जाता है आग्यावाचक, तो डी नंबर आ जाता है विषमक वाक। तो साथियों मेहरबानी करके स्कूल जाओ, ये वाक अपने को जोड़ा आ गया है, ये आग्यावाचक वाक के तहत आ जाएगा, क्योंकि इस दे अंदर किते न किते आग्या दी जा रही है कि मेहरबानी करके स्कूल जाओ, आग्या दी जा रही है, तो इनू आप आग्यावाचक वाक ही कहांगे। फिर अपने को 72 नंबर प्रश्न आ गया, मैं बाजार नहीं जा सकिया क्योंकि मेरी साइकिल खराब सी। क्योंकि मेरी साइकिल खराब सी, इत्थे क्योंकि शब्द के उपर ध्यान देना। ये किस तरह का वाक है, तो ये वाक दसना है कि आप किस प्रकार का है। तो इस वाक के अंदर क्योंकि शब्द नूं ध्यान च रखते हुए आप बड़ा सरल तरीके नाल इहदा जवाब दे सकते हैं, जेकर तुसीं व्याकरण नूं नोटिस किया है, व्याकरण नूं पढ़िया। ऐसे लिए आपनूं इस चैनल के उपर कंप्लीट पंजाबी व्याकरण अवेलेबल करवाई गई है, तो उस व्याकरण नूं तुसीं ध्यान नाल समझ के ही ये सवालों के जवाब दे सकते हो। हुण आपां विकल्प देख लैंदे हां। ए नंबर ऑप्शन संयुक्त वाक, बी नंबर सधारण वाक, सी नंबर आ जाता है मिश्रित वाक, तो डी नंबर आ जाता है गुंझलदार वाक। तो साथियों इस दे अंदर जिहड़ा आपां नूं पुछया गया है वो ना तो संयुक्त है, ना सधारण है, ना गुंझल है, सगों कि यह आ गया अपने कोल मिश्रित वाक आ गया। किहड़ा वाक आ गया, मिश्रित वाक के तहत आ गया है। तो फिर इस तो बाद अपने को नैक्सट क्वेश्चन है जोड़ा वो आ जाता है 73 नंबर है, इसनों आप देख लेने हैं। 73 नंबर जो अपने को आ जाता है, ये अंदर पूछा गया कि हेठ लिखिया विचों किहड़े वाक विच विषमिक चिन्ह की ठीक वरतों हुई है। इन्हां दे अंदरों किहड़े वाक के अंदर विषमिक की वरतों है जिहड़ी वो सही ढंग दे नाल कीती गई है। तो ये लिए अपने को विकल्प ने ए नंबर है, ओए मुंडिया तू शैतान निकलिया, ओए मुंडिया तू शैतान निकलिया, ओए मुंडिया तू शैतान निकलिया, ओए मुंडिया तू शैतान निकलिया। तो साथियों विषमिक है जिहड़ा वो इन्हां चारां दे अंदरों किस विकल्प के अंदर वधिया तरीके नाल वरत्या गया, तो वो आ जाता साथियों अपने को राइट ऑप्शन है जिहड़ा वो बी नंबर आ जाता है, क्योंकि बी नंबर ऑप्शन के अंदर वधिया तरीके नाल विषमिक वरत्या गया कि ओए मुंडिया तू शैतान निकलिया। बी नंबर है जिहड़ा वो अपना राइट विकल्प हो जाएगा। फिर इस तो बाद अपने को 74 नंबर प्रश्न आ जाता है, लाज रखनी मुहावरे लिए किहड़ा अर्थ ढुकवा है। मुहावरा पूछा गया इत्थे, तो मुहावरे का आप अर्थ दसना है। लाज रखनी मुहावरे का अर्थ दसना है। ए नंबर नसीहत देनी, बी नंबर मोहत होना, सी नंबर हार जाना, तो डी नंबर है मान रखना। तो साथियों ये अंदर लाज रखनी जिहड़ा मुहावरा है ਉਹਦੇ ਲਈ अपने को राइट विकल्प है जिहड़ा वो आ जाता है वो डी नंबर आ जाता है। यानी लाज रखनी का मतलब की हो गया मान रखना। लाज रखनी नूं आपां ये कहांगे कि मान रखना। तो मुहावरे हुंदे ने उन्हां दा हमेशा ही भाव पेश हुंदा है। फिर इस तो बाद 75 नंबर प्रश्न आ जाता है अपने को, सारे इक्को जे नहीं हुंदे दे प्रसंग विच किहड़ा अखाण ढुकवां है। यानी सारे इक्को जे नहीं होंगे, ये लिए आप इन्हां चों किहड़ा अखाण वरत सकते हैं जिहड़ा वधिया तरीके नाल सटीक इस गल दे उपर बैठदा है कि सारे इक्को जे नहीं होंगे।
ਤਾਂ ਵਿਕਲਪ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੀ ਨੰਬਰ ਪੀਸੇ ਦਾ ਕੀ ਪੀਣਾ। ਸੀ ਨੰਬਰ ਦੀਵੇ ਥੱਲੇ ਹਨੇਰਾ। ਤੇ ਡੀ ਨੰਬਰ ਧੋਲਾ ਝਾਟਾ ਖਰਾਬ ਆਟਾ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਧੋਲਾ ਝਾਟਾ ਖਰਾਬ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀਸੇ ਦਾ ਕੀ ਪੀਣਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੀਵੇ ਥੱਲੇ ਹਨੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਏ ਨੰਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 76 ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 76 ਨੰਬਰ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਥੀਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਏ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਲਨਾ ਵਿਧੀ। ਫਿਰ ਬੀ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਧੀ। ਬੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਧੀ। ਸੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਲਨਾ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਧੀ। ਡੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾਟ ਵਿਧੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਥੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੀ ਨੰਬਰ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਨਾ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਧੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 77 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 77 ਨੰਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਥੀਓ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਕਲਪ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਏ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਬੀ ਨੰਬਰ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸੀ ਨੰਬਰ ਕੰਨ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਸਹੀ ਤਾਲਮੇਲ। ਤੇ ਡੀ ਨੰਬਰ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕੰਨ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਸਹੀ ਤਾਲਮੇਲ। ਦੋਨਾਂ ਦੇਖੋ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। यानी सुनन कौशल के लिए आप सी नंबर विकल्प है जोड़ा वो राइट हो जाएगा। फिर इस तो बाद अपने को 78 नंबर क्वेश्चन आ गया, वो आप देख लेने हाँ। हेठ लिखिया विचों अध्यापन पक्ष तो किहड़ा ठीक नहीं है। साथियों नोट कर लेना, ये अंदर नहीं पूछा गया है, तो नहीं हमेशा ही जो पूछा जाए तो उसको नोट कर लिया करो। तो ये अपने को जोड़ा आ जाते हैं, पहले विकल्प देख लेने हाँ। सब तो पहले ए नंबर है वार्तक संगीत हीन होंदी है, कविता रसमई होंदी है। फिर बी नंबर ऑप्शन अपने को आ गया वार्तक विच उत्सुकता होंदी है, कविता विच आनंद होंदा है। फिर सी नंबर आ गया वार्तक अते कविता विच सारे विषयों उत्ते चर्चा होंदी है। तो फिर डी नंबर आ गया वार्तक अते कविता विच सिक्ख्या प्रणालियां विच शब्दार्थ व्याख्या विच काफ़ी अंतर होंदा है। तो साथियों आप नहीं वाला विकल्प चूज करना है कि इन्हां चों जिहड़े विकल्प दिते गए ने अध्यापन पक्ष तो किहड़ा ठीक नहीं है। ए नंबर साथियों ठीक है, क्योंकि वार्तक संगीतहीन हुंदा है तो कविता रसमई हुंदी, ये गल ठीक है। वार्तक उत्सुकता हुंदी है, यानी जिग्यासा बनी रहिंदी अगे की होने वाला है, की होएगा, तर्क हुंदे ने। जदों कि कविता च आनंद हुंदा है, आपां सुरां दा आनंद लैने हाँ, रस माणदे हाँ। जदों कि सी नंबर जिहड़ा विकल्प अपने को आ जाता है साथियों कि वार्तक अते कविता विच सारे विषयों उत्ते चर्चा होंदी, ये गल ठीक नहीं है। तो राइट विकल्प अपना सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो डी नंबर है जिहड़ा ये भी वार्तक अते कविता सिक्ख्या प्रणालियां विच शब्दार्थ व्याख्या विच काफ़ी अंतर होंदा, ये गल भी ठीक है कि दोनों के अंदर आपां सिक्ख्या प्रणालियां दे अंदर शब्दार्थ व्याख्या जिहड़ी हुंदी है उन्हां च अंतर देखण नूं मिलदा है। फिर इस तो बाद साथियों अपने को जिहड़ा नैक्सट क्वेश्चन आ जाता है
79 नंबर क्वेश्चन है वो आप देख लेने हाँ। तो ये अंदर आपां नूं पुछया गया है कि कहानी सिक्ख्या विच हेठ लिखिया विचों किहड़ी गल नहीं हुंदी। कहानी सिक्ख्या विच हेठ लिखिया विचों किहड़ी गल नहीं हुंदी। जान पहचान, बी नंबर खेड विधि, सी नंबर कहानी का वाचन, तो डी नंबर आ जाती है व्याख्या। तो साथियों कहानी पढ़ाने समय यानी ये टीचिंग मैथड जोड़े आ जाते हैं उन्होंने अंदरों आया हुआ क्वेश्चन है ये आप कहांगे। तो कहानी पढ़ाने के लिए इन्हों चों आप नहीं वाली गल दसनी है, हाँ वाली नहीं दसनी, आप इस दे अंदरों नहीं वाली गल दसनी है। तो साथियों कहानी पढ़ाने समय हमेशा ही आप जान पहचान तो करवानी ही हाँ, कहानी का वाचन भी करते हाँ, कहानी की व्याख्या भी करते हैं, पर खेड विधि के नाल इहदा कोई ताल्लुक नहीं है। कहानी का रस माणिया जाता है, उसकी कथा का रस माणिया जाता है, जदों कि खेड विधि नाल इहदा कोई ताल्लुक नहीं है। तो बी नंबर ऑप्शन है जिहड़ा वो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इन्हें नहीं पूछा आपां नूं। फिर अगे 80 नंबर अज दे इस पेपर के अंदर जिसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लास्ट क्वेश्चन देखना है। 80 नंबर क्वेश्चन है नावल सिक्ख्या का किहड़ा उद्देश नहीं है। ये अंदर भी नहीं दसना है आप नावल सिक्ख्या का किहड़ा उद्देश नहीं है, यानी नावल पढ़ाना है जिहड़ा वो आप इन्हां चों किहड़े उद्देश की पूर्ति नहीं करता। तो इस दे अंदर विकल्प देख लेने। ए नंबर नावल के पात्रां दीआं चरित्रिक विशेषतावां दसना, बी नंबर पंजाबी नावल के इतिहास के प्रवृत्तियां बारे दसना, सी नंबर है विद्यार्थियों को नावल के कथा वस्तु तो जाणू कराउणा, तो डी नंबर आ जाता है नावल पढ़ के शब्दार्थ समझाने। तो साथियों ये अंदर जिहड़ा अपने को इस प्रश्न के अकॉर्डिंग विकल्प आ जाता है वो आ जाता है डी नंबर, क्योंकि नावल सिक्ख्या का यह काम नहीं है कि नावल पढ़ो तो शब्दों के अर्थ दसो, जदों कि नावल के की मतलब है की उद्देश है, उद्देश ए बी तो सी आ जाते हैं, तो डी है जोड़ा वो उद्देश नहीं आता। तो विकल्प अपना डी इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। तो ये नावल उद्देश हो जाएंगे कि नावल के पात्रां दी चरित्रिक विशेषतावां दसना, पात्रां के चरित्र नूं आपां जरूर दसते हैं। नावल पंजाबी नावल के इतिहास के प्रवृत्तियां बारे दसना, ये भी आपां दसते हैं कि पंजाबी नावल का इतिहास की है तो किहड़ियां-किहड़ियां प्रवृत्तियां ने। तो सी नंबर है जिहड़ा विद्यार्थियों को नावल के कथा वस्तु तो जाणू करवाउणा। तो नावल की जिहड़ी कथा वस्तु है उस तो परिचित विद्यार्थी को करवाया ही जाता है नावल पढ़ा के। तो साथियों ये तिन्ने ने जिहड़े वो तो नावल की उद्देश की पूर्ति करते हैं, पर डी है जिहड़ा वो नावल के उद्देश की पूर्ति नहीं करता। तो इसलिए राइट विकल्प डी नंबर हो जाएगा। तो साथियों बाकी के जिहड़े बचे हुए प्रश्न ने उन्हों की प्रैक्टिस करांगे आपां अगले वीडियो के अंदर, अगली क्लास के अंदर। ऐसे तरीके नाल चैनल नूं प्यार ते सत्कार दिंदे रहना। तो इस दे नाल नाल साथियों आप लिए दसना चाहांगा कि चैनल के उपर आपनूं एवरीडे कुछ चैनल तो संबंधित, कुछ आपदे एग्जामां तो संबंधित, कुछ क्वेश्चनां तो संबंधित पोस्टां भी देखने को मिलणगीਆਂ। उन्हां दे जवाब ते उन्हां नूं भी तुसीं पोल करके वोट जरूर करते रहा करो, ताकि इस नाल आपां नूं एक दायरे के अंदर पता चल जाता है कि किन्ने स्टूडेंट ने जिहड़े वो किस लैंग्वेज तो संबंधित ने, या फिर किन्ने स्टूडेंट ने जिहड़े वो किस प्रकार की विचारधारा रखते हैं, किस तरीके नाल पढ़ना पसंद करते हैं। इदां दे प्रश्न भी आपनूं चैनल के द्वारा अज तो ये पूछे जाने शुरू हो जाएंगे, या फिर मिल भी रहे होंगे। इस तो पहले आपको मिल चुके होंगे कई वोट पोल के क्वेश्चन, हाँ नहीं के क्वेश्चन, या फिर कोई होर जीके टाइप क्वेश्चन। तो उन्होंने आंसर भी तुसीं देखते समय विच विचाले दिंदे रहा करो। इस नाल चैनल नूं अगे वधन दे अंदर सहारा मिलता है, तो उसनूं पता चलता है कि विद्यार्थियों नूं किस प्रकार के जिहड़े अगे वीडियो अवेलेबल करवाने ने। ऐसे तरीके नाल साथियों चैनल नूं फॉलो करते रहना। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, उदों तक के लिए धन्यवाद साथियों।